एबीएन देख रहे समूह दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एबीएन के जरिए आपके द्वार हमने मुहिम शुरू करी है, उसी के तहत हम आज पहुंचे वार्ड नंबर 7 में। वहाँ लोगों का क्या कहना है, क्या विकास हुए और क्या विकास नहीं हुए, क्या उनकी मांग है और क्या पूरी होनी चाहिए। यहीं पर लोगों ने बताया कि कोरोना की घड़ी में उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये सब हम आपके सामने लेके पेश है। इसमें जो कुछ भी है लोगों की जुबानी है, इसमें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। आइए करते हैं वार्ड नंबर 7 के लोगों से बात। नमस्कार सर जी, नमस्कार ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀ? मेरा नाम तिलक राज है जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? वार्ड नंबर 7। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਿੱਬੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕभी तो ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਖੜਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਆਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਜੀ ਐਮਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਸੀਬੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਐਮਸੀ ਆਉਣ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਣਾਏਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਾਹਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਚਾਂਦ ਰਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? 7। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਅਸ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੱਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਆਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਸ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? 7।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜੀ? ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਸੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਕੰਮ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, 4000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? 7 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਜੀ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਐਮਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹੀ ਐਮਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਜੀ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੀ? ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? 7 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਸੋਨਾ ਰਾਮ। ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੀਵਰ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਜੀ? ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਚੰਗਾ ਐਮਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਨੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੱਪਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕਪਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੰਗ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी?
हम आपसे ये पूछना चाहते हैं भी आपको यहाँ रहते लगभग कितने साल हो गए जी? मेरे को 12-13 साल हो गए तो- यहाँ इस मकान से। इस वार्ड में जो पहले नगर कौंसिल का 10 साल अकाली भाजपा का बोर्ड रहा है, उन्होंने आपकी गलियों नालियों के कोई काम कराए या नहीं कराए जी? कोई भी नहीं कराया। इस गली के 12 साल हो गया ऐसी कितने साल हो गए जी? 12 साल हो गए इस गली। तो आप लोगों की तरफ से सरकार से जो एमसी लड़ना चाहते हैं, जो एमसी है, उनसे कभी इन गलियों को बनाने की मांग करी गई जी? हाँ मैं करी गई थी, अभी तक नहीं बनी। क्या कहते हैं जी? उन्होंने आपकी कोई सुनाई नहीं वही करी। कहते रहते बना देंगे बस, ऐसे बोलते रहते। तो अभी अक्टूबर या नवंबर में दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो काउंसलर आए जो एमसी बने, वह कैसा होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से जी? मेरे हमारे हिसाब से तो ये सर हमारा काम करके देगा। जैसे काम जी? काम ये सारी सड़क बना के देगा। तो अभी करोड़ टूटी ना हमारे गली से पानी है, कुछ भी नहीं है। पीने का पानी भी नहीं आता। हाँ टूटी है, हमारी गली से टूटी भी नहीं आती, हमारी गली से कुछ भी नहीं आ रहा है। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां जी? कुछ भी नहीं है कभी। तो अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें आप लोगों की मदद करने के लिए सरकार या एमसी की तरफ से कोई मदद कर भेजी गई जी? नहीं भेजी। हाँ की और पैसे पूछे मोदी पास से आए बस, और तो कोई भी नहीं आया, सरकार के पास कुछ भी नहीं आया। तो अभी जो एमसी आने वाले हैं, उनसे आपकी इस गली या इस कॉलोनी का क्या नाम है जी? गुरु नानक कॉलोनी। गुरु नानक कॉलोनी वासियों की क्या मांग है जी? हमारे लोगों ने तो यही मांगे भाई, सारी पानी मिले मेरे को, सड़क मिले। स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगी हुई हैं जी? हाँ जी। स्ट्रीट लाइटें? क्या नहीं। वार्ड नंबर जी? हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में जो 10 साल एमसी रहे हैं, उन्होंने आपके वार्ड या आपकी गलियों के या आप लोगों की सहूलत के लिए क्या क्या काम कराए नगर कौंसिल की तरफ से, और क्या रह गए जी? कुछ नहीं करवाई जी, पैप पाई उससे पानी नहीं आएगा। ये कहते हैं जब पानी आएगा, पूछते पानी की तो समस्या ही नहीं सुनते सकती। तो यहाँ गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ वगैरह बनी हुई है कि नहीं जी? पीने का पानी कैसा आता है जी? पानी पीने का फिल्टर में ले आते हैं, तो आप मच्छी वो घर में करवाया है। और नगर कौंसिल की तरफ से पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया जी? नहीं करवाया जी। वो आपके मोहल्ले की गलियां और स्ट्रीट लाइटों का क्या हाल है जी? नहीं जे कल सरपंच में कहते वोटा पानी पाओ और सारी गली बननी, जो असली की कोई समस्या नहीं कर सकता ना। अभी जब कोरोना का महामारी चल रही है, इस कोरोना की महामारी में नगर कौंसिल फाजिलका की तरफ से या सरकार की तरफ से आप लोगों की कोई मदद करी गई जी? नहीं करेगी। अभी अक्टूबर या नवंबर में जो नगर कौंसिल के चुनाव आने हैं, उसमें आप कैसे एमसी चाहते हैं? अभी वो कैसे एमसी आए? कोई भी नहीं आया। जो अभी अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसिल चुनाव होने हैं, उसमें जिन्होंने एमसी बनना है वह कैसे होने चाहिए जी? होना चाहिए भी, सारा काम होना चाहिए इस गली का, गली बननी चाहिए, पानी होना चाहिए। मकाना की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जो गली बनेगी तो पानी आएगा, ता ही हल होएगा। आपको यहाँ रहते कितने साल हो गए जी? सानू 30 साल हो गए। तो 30 सालों में आपके वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ जी? कोई नहीं होएगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਕੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਖੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਜੀ 'ਚ। ਵੇਖ ਲਓ ਖੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲੀ ਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਐਮਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਸ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੋਰ बस यही चाहते हैं। जो सरकार द्वारा अक्टूबर या नवंबर में एमसी के इलेक्शन कराने की संभावना बताई जा रही है, उसमें जो काउंसलर आए वो कैसे होने चाहिए जी? देखो जी, हमने तो वोट डालनी है, पर हमारा जब तक काम नहीं कोई भी हो गया तो हम कैसे इनको वोट डालेंगे? जब भी इनके पास जाते हैं तो ये कह देते जी बस महीने बाद आपका बन जाएगी गली, आपकी महीने बाद बन जाएगी, पर हमारा कोई विकास नहीं होता है।
आप कैसे एमसी चाहते हैं जी? जो नया एमसी आए वो कैसा होना चाहिए जी? वो ऐसा होना चाहिए जी, हमारी मुश्किलों का सारा निपटारा होना चाहिए जी। जो जेन्युइन काम है वो तो होने चाहिए ना जी। बाकी चलो छोटे मोटे ना भी हो तो कोई बात। जैसे आपके हिसाब से जेन्युइन काम किसे किसे क्या जाता है जी? क्या होते हैं जो? जैसे जी गली बन जाए, पानी के कारण आपको पता है कितनी मुश्किल आती है जी, ठीक है ना जी। हम गरीब लोग हैं, पानी का नहीं हो हमारे पास है सोर्स, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो अभी कोरोना की महामारी में आपसे सरकार की तरफ से जो एमसी लड़ना चाहते हैं वह या सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने आया जी? नहीं कोई नहीं आया। कोरोना की महामारी में आपको किसी ने मदद करी जी? नहीं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए जी, और क्या क्या विकास कार्य जो अभी इस वार्ड या इस गली को जरूरत है जो रह गए जी? सबसे पहले ये सड़क कच्ची थी जो एमसी के सामने बनाई जी सर। और इससे हमारे को बहुत फायदा हुआ है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। और रात को हम यहाँ सैर भी करने से निकल जाते हैं, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। तो अभी पंजाब सरकार द्वारा अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने की संभावना की जा रही है, उसमें जो काउंसलर आए वो कैसे होने चाहिए जी? वो ऐसे होने चाहिए। ऐसे कैसे जी? जैसे ये काम करवाते हैं, जैसे इनकी जो मेरिट है वो एडवांटेज ही एडवांटेज। उनका क्या नाम है जी? हाँ जी, जो आपके काउंसलर हैं उनका नाम क्या है जी? का लाभ तो वो है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है जी अपने वार्ड या गलियों के लिए जी? हमारी तो यही मांग है कि हमारा वार्ड की सफाई अच्छी तरह हो, और जितनी अच्छाई होगी उतनी बीमारी कम होगी, और अगर गंदगी फैलेगी तो उतनी बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। फिलहाल हम संतुष्ट हैं। सर आपका नाम जी? सर आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर तो मेरे को पता नहीं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में पिछले नंबर है वार्ड नंबर। पिछले 5 सालों में आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए जी, और क्या क्या रह गए जी? सड़क बनी है 3 नंबर वार्ड की। इस सड़क में अभी तक जो नाली है ना उसका कुछ नहीं किया। तो अभी जो अक्टूबर या नवंबर में पंजाब सरकार नगर कौंसिल के चुनाव दोबारा कराने जा रही है, उसमें जो काउंसलर आए वो आपके वार्ड का काउंसलर कैसा होना चाहिए जी? काउंसलर तो यही होना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया। एक वार्ड वासी को एक काउंसलर से क्या क्या कार्य रहते हैं जी? ये नाली नहीं बनी अभी तक। एक वार्ड वासी को एक काउंसलर से क्या क्या काम रहते हैं जी? काम तो हमारी तो ये एक नाली रहती है बस, और बनता भी क्या। नंबर जी? आपका नाम जी? मेरा नाम सुंदरलाल। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 7। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में नगर कौंसिल द्वारा या एमसी द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए बीते समय में, और क्या क्या नहीं कराए गए? बीते समय में विकास आज तक कोई काम नहीं है। एमसी बारे तो तुम पूछो तो वो तो है ही नहीं, जैसे कोई विकास वाला काम है। और जैसे कोरोना की महामारी के चलते सरकार द्वारा या एमसी द्वारा आपको कोई मदद भेजी गई जी? इतने कोई मदद देने वाला है नहीं, देखने वाले है बस। आओ गरीब है ना, उन्होंने और दबाया जाए, और कोई गल नहीं। तो जो अक्टूबर या नवंबर में दोबारा एमसी के चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो एमसी आए आपके वार्ड का वो कैसा होना चाहिए जी? साढ़े को तो सरकार जी है जी, कांग्रेस में है नंदी साहब, नंदी नहीं यार सरकार जी है। वो बंदा बहुत बढ़िया, सादा वार्ड भी उधर ही है बंदा, वो बहुत बढ़िया है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से जी अपने वार्ड वासियों या आपके गलियों के लिए? गलिया में अभी वो सामने आए थे ना, एमसी साहब ले आए थे, वो समझे तो पूरा समझ लो कांग्रेस बन गई, आगे जनता पार्टी बन गई। वो समझ लो इसकी लिए कराई होगी ये चंदे बारे से, वो अभी तक वो बराबर ही सड़क बनी थी ना,
ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੜਕ ਇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਐਨ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੋਟਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੋਟਾ ਬਣਿਆ, सड़क सीधी नहीं बननी। आप क्या मांग करते हैं जी? मैं तो कहना जिन्हें वो सड़क उसको बननी चाहिए ना, पूरी बने, वो पूरी बननी चाहिए, ते ब्रेकर लगन। हाँ पूरी बननी चाहिए। जिन्हें वो कारकम इधर को ब्रेकम लाया ना, उसी तरह ब्रेकम लगनी चाहिए। सड़क ऐसों तक बननी चाहिए, एक्स्ट्रा 8 मीटर। जनता पार्टी के आगे एक ख्वाहिश होना चाहिए, उधरों जो पानी आता ना वो इतने पैप हैगी, हाँ वो पैप के ना आ पानी इतों तक पैप पैन वाली पानी आना वो नहीं पाई अज तक किसी को। उतों आ जाओ तो इतने तक पैप ही पैनी सिर्फ, और कोई ध्यान नहीं करता किसी का, तो किसी की जरूरत नहीं होती। वो गरीब जिवें तंग है, पानी तो तंग है नहीं है, इन्हों कोई परवाह नहीं। इन्हों फोन कह कर करके तो ये पानी पहुँचाते हैं। वो टुटा पैना चाहिए पैप का, वो सड़क उतों शुरू होनी चाहिए। तो वो छप्पड़ बनेगा, हर बारी छप्पड़ बनता है, उतों सीवर बंद होएगा तो वो छप्पड़ बनेगा। पता नहीं लोगों को किसी नाल की गलती ये आपको पता है। यही सोचते हैं भी जनता पार्टी बारे की कोई काम नहीं, साढ़े वास्ते सारी पार्टी एक होई है, क्योंकि असी तो मोर बंदा देखना होंगे भी बंदा सही है, उसमें असी वोट दे देंगे। हुण असी तुहानूं कह देना इधर वो आए सी सरदार जी महाराज दुरेजा जी, हाँ उन्होंने नाम तो मैं नहीं जानता, दुरेजा जी, हाँ वो उन्होंने कुछ मदद की शिक्षे आ गई। आज गरीब थोड़ा जहा राशन दे गए सी, उस तो बाद कोई अपने आप में शक नहीं। ये पानी की पैप है ना इतों रख के ये पैनी चाहिए, उतों होनी चाहिए, उत्थे छप्पड़ बनता है। और जगह छप्पड़ बनता है MC साहब को बुलाया जाता, देखना भाई वो बार बार बस एक्टिवा से आके चला जाता। वो छप्पड़ वाला काम तुम बंद करवा और सीवर खुल जाए तो सड़क उसको बराबर ही करनी चाहिए। और ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपने सक्रिय राजनीति में कब से भाग लेना शुरू किया? मैं जी मैं तो रिटायरमेंट तो बाद ही लिया। कौन से साल से? अच्छा 5 तो 2005 रिटायर होया सी मैं जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट MR गवर्नमेंट कॉलेज तो, लेकिन पार्टी नाल लिंक मेरा 1976 तो है, जो एमरजेंसी तो बाद उदों का ही है जी। जिस वेले चौधरी सतदेव के ये होंदे सी, पृथ्वीराज इन्हां दे प्रधान होंदे सी, फिर जमान चुग उन्हां दे टाइम तो जी मैं बीजेपी के 30-40 साल तो है। आप तब से हो, लेकिन जब आप कह रहे हो भी मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद सक्रिय राजनीति में आया, तो ऐसी क्या स्थिति आपको लगी कि आपको सक्रिय राजनीति में आना पड़ा जी? देखो, कुछ तो हमारे वार्ड के अंदर कुछ लोग अनपढ़ होने के कारण कोई ठोस आदमी नहीं था हमारे पास। हालांकि मैं जब आया, जब वो हमारे मेरचंद होते थे,
उसके बाद मैंने ज्वाइन किया जी, पार्टी ने भी जोर लगाया भी आप बीजेपी ज्वाइन करो। 8 के अंदर उन्होंने मुझे टिकट दी बीजेपी की, तो बीजेपी टिकट से मैं लड़ा, एमसी बना, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना। और आपने पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड के क्या क्या विकास कार्य कराए जो आपको लगते थे भी आपके आने से पहले नहीं हुए? एक तो जी लाइट की बड़ी समस्या थी, स्ट्रीट लाइट सारी की सारी वार्ड के अंदर मैंने लगवाई, और कुछ गलियां थी वो गलियां बनवाई। पहले वो था इधर से क्या कहते हैं वो वाल्मीकि महल्ला नेहरू नगर, उसकी गलियां, फिर इधर खुराना साहब थे इधर उधर की गलियां बनवाई जो कच्चियां थी। ये मेन सड़क से बनवाई जी, जो ये मंडी को जाती है, ये सड़कें बनवाई। उसके अलावा और क्या कराया? स्ट्रीट लाइट बनवाई, लगवाई आपने, गलियां लगवाई, उसके अलावा वार्ड वासियों की सुविधा के लिए आपने अपने पार्षद या नगर कौंसिल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हुए क्या क्या कार्य कराए? सबसे बड़ी जी हमारे पानी की बड़ी समस्या थी। लोग पानी के लिए मंडी से, अनाज मंडी से पानी लेके आते थे, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मैंने अपने टाइम में वहां ट्यूबवेल लगवाया, महल्ले को पानी अब फुल मिल रहा है। ये सबसे बड़ी चीज हुआ जो इतने सालों से नहीं हुआ। आपने भाजपा में आने के बाद अपने वार्ड के, आपने बताया भी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था नहीं थी, वो करवाई, चलने फिरने के लिए साफ सड़कों का प्रबंध कराया, पीने के लिए स्वच्छ व साफ पानी का आपने प्रबंध कराया। उसके अलावा हम आपसे फिर ये बात जानना चाहते हैं कि दूसरी टर्म में जब चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ भी इलाका वासियों या मोहल्ले वासियों ने आपको छोड़ कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया? उसकी वजह जी अब क्या बताएं जी, अब जैसे जनता है जनता का क्या मूड का कब पता लगता है क्या करने की। अब पछता रही है सारी जनता भी, हमने गलत किया उसको बना के। ऐसा क्या कारण हुआ भी आपको लग रहा है भी आपके वार्ड वासी या जनता पछता रही है भी आपको हरा के और कांग्रेस को जिता के इस वार्ड से? इस वार्ड से मेन कारण तो है महावीर है, एक तो वो अनपढ़ है, फिर दूसरा वो घर पर नहीं मिलता है, वो सिवाय कचहरी के रजिस्ट्रियां करवाता है वही होता है। किसी को काम पड़ जाए तो पहले तो उसको ढूंढ के लाओ, भी वो मिलेगा कहाँ। सबसे बड़ी लोगों की ये दिक्कत है। हमने आपके वार्ड में कुछ लोगों से बात करी, कुछ लोगों की नवे टिटोली, किसी से कुछ जानना चाहा भी वार्ड में विकास इन 5 सालों में क्या हुए और क्या रह गए। लोगों की जो हमें इस वार्ड से, इस आपके वार्ड से आवाज आई वो थी गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, बड़ा बुरा हाल है। कुछ वार्ड वासियों ने बताया कि आपके पीछे वाली ये जो लंबी सड़क है वो आधी बनी है, आधी मंडी की तरफ से आती है, वो नहीं बनती। जब भी बारिश आती है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी भर जाता है। तो आपको पार्षद लोगों ने नहीं जिताया, लेकिन कांग्रेसी पार्षद को जिताया। इसके बावजूद फाजिलका में नगर कौंसिल में जो बोर्ड बना वो अकाली भाजपा गठजोड़ आपकी सरकार का बना। उसमें जो प्रधान थे वो भाजपा श्री राकेश जी तुड़िया थे, और शहर के जो विधायक भी थे वो तब सुरजीत जैनी थे। उसके अब 3 साल कांग्रेस को हो गए हैं। तो आपका बोर्ड होते हुए वार्ड वासियों को दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में आप? वार्ड वासियों को दिक्कत इस करके आ रही है, कुछ तो ये महावीर नहीं होने देता जी काम। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये कहता मेरे होने से काम नहीं होता था, इनके होने से क्यों? ये गुबाया करके काम रुकवा देता है भी मेरे कहने से ही काम हो, इनके कहने से काम नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हम थे उस टाइम ये थे भी जनता का काम होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी किसी के थ्रू हो, पब्लिक को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी जो पीछे कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया के साथ फाजिलका में भी दिखने को मिल रहा है, और लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते लोगों के काम धंधे नौकरियां बंद हो गई, लोग घरों में बंद हो गए, और इन बंद होने के कारण लोगों को रहने की, खाने पीने की दिक्कत आ गई। तो उसमें आपकी सरकार ने या आपकी पार्टी ने या आपके द्वारा आपके वार्ड वासियों के लिए क्या क्या इंतजाम कराए गए? वार्ड वासियों को जी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है राशन, वो इन्होंने सही ढंग से जी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। इन्होंने जो बीजेपी के आदमी थे जी
उनको राशन ही नहीं दिया इन्होंने, अपने अपने आदमियों को दिया। हर एक वार्ड में यही समस्या आई है। अभी जब पंजाब सरकार दोबारा अक्टूबर या नवंबर में चुनाव कराने की नगर कौंसिल की संभावना जता रही है, उसमें क्या आपकी तरफ से पार्टी में अपना दावा पेश किया जाएगा जी? दावा तो पेश किया जाएगा, लेकिन जो हमारे वार्ड बंदी हुई है ना जी, सबसे बड़ा वो नुकसान होता है। जैसे वार्ड बंदी एक तो बात सुनो, अगर 25 वार्डों से अगर वार्ड बंधते 27, 28, 29 होते, फिर तो चलो मान लिया भी वार्डों की कटबंदी करके थोड़ी गलियां काट के इधर लगा दो इधर लगा दो, कोई बात नहीं। अब हमारा वार्ड 3, 2, उसके बाद 7 आता है हमारा वार्ड। अच्छा 7 वार्ड, बीच में 2 आ गया, बीच में 3 आ गया, उसके बाद सड़क पार, बस स्टैंड पार, फिर उसके बाद लाइन पार जी, वो कॉलोनी जो है बिजली बोर्ड वाली, झूलेलाल कॉलोनी नहीं, वो बिजली बोर्ड वाली है, जो बिजली बोर्ड की कॉलोनी है, बावरिया कॉलोनी, वो हमारे साथ मिला दी। लेकिन जब से ये हम इलेक्शन लड़, जब से पार्टी बनी है या जब से इलेक्शन होने शुरू हुए, जब से वो कॉलोनी नंबर 2 वार्ड में आती थी, पम्मी के वार्ड में। लेकिन अब क्या ना, पम्मी वगैरह ने इन्होंने रल के वो सारा का सारा वो हमारे पास करवा दी। ये महल्ला सारा कटवा दिया जी, ये वार्ड 3 में लगा दिया। अच्छा उधर से वो जो कॉलोनी हमारे में डाल दी, इधर से ये क्या कहते हैं वो मच्छी मार्केट, वो भी हमारी तरफ लगा दी। ये सारा एरिया जो काट के हमारी तरफ लगा दिया। जो 2-3 वार्ड क्रॉस करके तुम जाते हो, ये कहाँ पे वार्ड बंदी होगी जी? साथ लगता है एरिया तो मानते हैं भी हमारे साथ लगता है, साथ लगा दो। 2 वार्ड क्रॉस करके फिर जाके इन्होंने कैसे मिला दिया हमारे? तो आपके हिसाब से जो कांग्रेसियों ने या कांग्रेस सरकार ने वार्डबंदी कराई वो गलत हुई? वो बिल्कुल गलत हुई। अगर वार्ड बचते कुछ, फिर अगर काट पाट हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। वार्ड 25 के 25 है, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई इनको कि सारे वार्ड उल्ट पुलट कर दिए इन्होंने? तो उससे जो यहाँ के कांग्रेसी पार्षद हैं उनको और आपको या इस वार्डवासियों को भी नुकसान है जी? वार्ड वासियों को तो क्या नुकसान है जी? इसमें दिक्कत तो आएगी। दिक्कत तो उनको आएगी जो बिजली घर वाले मेंबर होगा इधर का, पर वहां से इतनी दूर आएंगे जी, वहां से आके पता नहीं मेंबर मिलता भी है कि नहीं। आगे तो ये साथ में लगता था हमारा, हजूर सिंह की बस्ती आ गई, अमर कॉलोनी आ गई, इधर से ये आ गया, नेहरू नगर आ गया। अब कहाँ से मच्छी मार्केट, कहाँ वो बिजली घर? दिक्कत तो हमें भी आएगी, उनको भी आएगी। यही बात हमने ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री सुरेंद्र कारडा पप्पू जी से भी करी थी भी आपके ऊपर कुछ लोगों ने वार्ड कटवाने के आपकी पार्टी का इल्जाम लगाया, तो उन्होंने कहा वार्ड की जो वार्डबंदी होती है वो किसी भी पार्टी द्वारा नहीं कराई जाती, जबकि सरकारी अधिकारी आते हैं वो सर्वे करने के बाद वार्डबंदी करते हैं। सर्वे करवाते कौन करवाता है जी? सर्वे तो इन्होंने ही करवाया है। सर्वे गुआया हो गया, ये हो गया, इनकी वजह से सर्वे हुआ है, इन्होंने ही करवाया है। अगर ये इतराज करते भाई ये वार्डबंदी जो पहले वाली है वही रहने दो, तो क्यों वार्डबंदी होती है? इतराज तो इन्होंने किया ना कि वार्डबंदी दोबारा होनी चाहिए। तो क्या जब ये इतराज लिए जा रहे थे विरोधी धीर अकाली भाजपा का नहीं लिए गए इसमें एतराज? वार्डबंदी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। इतराज बीजेपी ने लगाया, हमारे प्रधान जी ने लगाया, धुड़िया साहब ने, वार्डबंदी जो हुई है वो सही नहीं हुई, ये सही होनी चाहिए। तो उस पर कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम आपसे, अगर आपको इस बार पार्टी टिकट देती है, हाँ जी, अक्टूबर या नवंबर में अगर कौंसिल के चुनाव होते हैं तो आपको आपकी पार्टी टिकट देती है, तो आप इलेक्शनों के बाद अगर लोग आप पे विश्वास जताते हैं, आप जीत जाते हो, तो आप अपने वार्ड के लिए क्या क्या कार्य करोगे? वार्ड के लिए जो वार्ड के काम होंगे जी सारे ही करवाएंगे। अब जैसे महावीर ने करवाए थे काम, आर्या नगर जो मेन है उसके अंदर तो काम ही नहीं हुआ जी किसी तरह का। जो काम इन्होंने कराया था वो एरिया सारा कट गया। कुछ तो अमर कॉलोनी के करवाए थे, कुछ ये हमारे पीछे 15 नंबर वार्ड में थे वो करवाए थे। अब वो वार्ड नंबर 3 में आ गया हमारा सारा एरिया। अब एरिया एक रह गया उसका क्या कहते हैं आर्या नगर का, उसके अंदर काम होने वाला है।
उसकी एक तो सीवरेज की सफाई होने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि हर सैटरडे को सीवरेज बंद होता है। तो आप क्या कार्य कराओगे जब आप अगर जीत जाते हो इस बार? तो इस बार जीतेंगे तो एक तो आर्या नगर की डेवलपमेंट है जी, एक सीवरेज का काम है जी, ये जरूर करवाएंगे। आर्या नगर का हो गया, इधर से ये कुछ आ गया, नेहरू नगर के हो गए जी, इधर की भी गलियां गुलियां बनने वाली हैं। क्यों अब के ये दूसरे वार्ड में चली गई थी, 14 नंबर में वार्ड में थी, तो कुछ इधर गलियों का काम नहीं हुआ, इधर से गलियों का बनवाना वगैरह वो करवाएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके भाजपा में चुनाव लड़ने से पहले यहाँ से फूलचंद का परिवार भाजपा से चुनाव लड़ता था। इस बार उनकी परिवार की तरफ से भी टिकट का दावा किया जा रहा है। अगर टिकट उनके परिवार को मिलती है तो आपका रुख क्या रहेगा? पार्टी के साथ है जी, उनको अगर मिलती है टिकट तो उनके साथ है। फूलचंद को पार्टी के अंदर लेने वाला मैं ही उसको लाया था। तो अगर टिकट उनके परिवार को मिलती है तो आप उनका समर्थन करेंगे, पार्टी के आदेश का पालना करेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी के साथ आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्ड वासियों को यही संदेश है कि बीजेपी को वोट डालो और बीजेपी को बनाओ, चाहे कोई भी खड़ा हो, जिसको मर्जी पार्टी टिकट दे, हमें तो मतलब बीजेपी से, जो बीजेपी का आदमी बनना चाहिए। क्या आप ये समझते हो भी फाजिलका में विधायक कांग्रेस के हैं, पंजाब में सरकार कांग्रेस की है, इसके बावजूद भाजपा में आपका वोट बनेगा इस बार? बिल्कुल बनेगा जी। ये तो इनका तो 1.5 साल रह गया जो इन्होंने काम करवाए कांग्रेस वालों ने। सारा पंजाब ही इनसे दुखी है, क्या कराया इन्होंने। तो आने वाली हमारी बीजेपी की सरकार पंजाब में बनेगी, चाहे अकेले लड़े चाहे अकाली दल के साथ लड़ेंगे, तो सरकार हमारी बनेगी जी, और काम भी होंगे। इनका तो 1.5 साल रह गया। आपको पता है, साथ जब रह जाता है तो ऑफिसर लोग भी काम करना बंद कर देते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि आने वाली सरकार आए, उनका काम कराए। तो अभी जब नगर कौंसिल में किसी भी पार्टी का कोई पार्षद नहीं है, टर्म पूरी हो गई है, 4-5 महीने हो गए हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, उसमें आपको अपने वार्ड वासियों के काम कराने में कोई दिक्कत परेशानी आती हो? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सीनियर वाइस प्रधान रहा हूँ पिछली बार। तो सारे दफ्तर वालों से, जितने भी अपने ऑफिस के हैं, ईओ के साथ तो जाने की दिक्कत ही नहीं आती जी कुछ। वैसे ही अपने तो काम बेचारे फोन पर ही कर देते हैं। कमेटी के जितना भी मुलाजिम है, और 2-4 बार ईओ साहब को मिले हैं, उन्होंने भी काम से कभी ना नहीं किया। गिरधर साहब, उनका भी ठीक है जी, कोई बात नहीं। हाँ जी सर। हाँ जी। आप पहली बार कब चुनाव लड़े थे? हाँ जी सर। मैंने पहली बार 78-79 के अंदर जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा। पहली बार उस टाइम मेरे चल हमारे इलेक्शन लड़े। मैं उस टाइम 15 वोटों से हार गया था। उसकी वजह भी ये थी भाई पार्टी ये फैसला नहीं कर सकी भी टिकट हम किसको दें। हमारे 2 और थे, जनता पार्टी से संबंध रखते थे, उन्होंने कहा जो बन गया वही हमारा मेंबर। तो जो दूसरा धड़ा था वो था प्रभु दयाल भगवती प्रसाद के भाई साहब से, वो 27 वोटों ले गए। एक हमारे सीताराम जी थे, वो 127 वोटों ले गए। इन करके मैं 17-18 वोटों से हार गया उससे। अगर हम पार्टी के एक होते, एक को टिकट देती तो उसी टाइम हम जीत जाते इलेक्शन। उसके बाद 30 से 83 को हमारा कॉलेज हो गया, टेक ओवर कर लिया, सरकारी हो गया। उसके बाद मैंने ना पार्टी से थोड़ा सा किनारा कर दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन आया, बीजेपी को आदमी नहीं मिला। फिर मैंने फूलचंद, जो मेरा भतीजा लगता था रिश्ते में, उसको मैंने टिकट दिलवाई, उसको इलेक्शन लड़वाया। हाँ जी, नमस्कार जी। आप पिछले 5 सालों से इस वार्ड में काउंसलर हैं जी। आपने अपने वार्ड के लिए क्या क्या विकास कार्य करवाए जी? सड़कें बनवाई, 1 करोड़ रुपया लगाया। सभी गलियां जाके देखो, लोगों से पूछो आप कि नाली सड़कें बनवाई है कि नहीं बनवाई। लोग कह दे बनवाई, फिर तो हमारे को बोलना भी ठीक है।
लोग बागों से पूछा हो महावीर MC किमें कम करता कि भी नहीं करता, जो कहता ठीक है सड़क आईया छोटे मोटे तो पुराने लोगों के रहते हैं, बाकी तकरीबन सारे काम हो गए। आप सक्रिय राजनीति में कब से आए जी? मैं 40 साल 50 साल से साढ़े पिताजी बना रहे, उसके बाद पहली बार मेरी टिकट मिली। वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे बीजेपी के राज में सीट जीती लोगों का आसान में। तो अभी जब पिछले 3 सालों से पंजाब में कांग्रेस सरकार थी है और नगर कौंसिल में भाजपा का बोर्ड था, तो आपको वार्ड के विकास कराने में क्या परेशानियां हुई और क्या आपका काम आसान हुआ? दिक्कत तो बहुत है, जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद ये नाली सड़कें चालू हुई है। पहले तो कोई सुनाई उनाई नहीं थी, तो कोई सुनाई उनाई होने लगी। तो भाई साहब की मेहर हो, तो भाई साहब ने जहाँ गया भाई सड़क बनवा दी, जहाँ गया भाई सड़क बनवा दी। तो भाई साहब को लेके आया मैं, तो भाई साहब ये कच्ची सड़क है, उसमें बोला पक्की सड़क, अभी पीछे पटकी सड़क और बना दी। अभी अक्टूबर या नवंबर में पंजाब सरकार दोबारा चुनाव कराने जा रही है कौंसलर के जी, उसमें आप अपनी पार्टी से अपने वार्ड में इलेक्शन का फिर दावा पेश करेंगे जी? करेंगे, जरूर करेंगे। पार्टी हाईकमान टिकट देगी तो स्वीकार करेंगे। अगर आपको इस बार टिकट ना मिली या किसी और को मिली तो क्या आप आजाद इलेक्शन लड़ोगे? लड़ेंगे आजाद इलेक्शन, जो पार्टी का हुक्म है वही स्वीकार। और आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जी? संदेश तो यही है जी, 5 साल हमने बढ़िया निभाए लोगों से, अब भी कोई काम करे और जी गाँव आपको पूछते उससे पूछते गाँव आप वहीं आते से कोई भी आदमी दूसरा वार्ड का भी होगा ना, शहर का है उसका भी। तो आपके वार्ड वासियों से बात करते हुए वार्ड वासियों ने कंप्लेंट करी भी हमारी गलियों की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वह नहीं चल रही, कईयों ने यह शिकायत करी भी अभी नालियां तक नहीं बनी। उसके बारे में आपने नगर कौंसिल से क्या काम कराया या क्या काम कराने में? आपके सामने है, देख लो सड़कें बनी है, कई बड़ी तो कोई ऊपर ठेकेदार नहीं आ रहे, वो भी काम हो जाएंगे। अब ये कहते हैं फटाफट होइए, फटाफट नहीं होता। ठेकेदारों को लड़ रहे हैं, रोज को रोज जाते हैं हम कमेटी में नगर कौंसिल में, तो ठेकेदार कहते हैं सुबह शाम करते हैं काम तो हो जाएगा, टाइम तो लगता ही है। अभी आपके साथ एक गुरु नानक कॉलोनी भी आपके साथ अटैच करेगी, वहाँ लोगों का ये कहना है अभी हम 25 से 30 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन पीने के पानी की जो पाइप तो डल गई है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा, जो सीवरेज की पाइप डल गई है उसकी निकासी नहीं हो रही। तो वो जो वहाँ की गलियां हैं उन्होंने ये भी कहा भी हम समुद्र के टापू के बीच में रहते हैं, जब बारिश होती है जब बादल आता है तो हमारे सांस फूल जाते हैं कि हर तरफ पानी हो जाएगा, निकासी नहीं है। उसके बारे में आपने क्या कहा? निकासी कराएंगे जी, ठेकेदार उधर सड़क बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, 1-2 दिन में चालू कर देंगे। और आप अपने वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जी? अपने वार्डवासी को ये जी, लोग तन मन धन से हमारे को चाहेंगे तो हम भी उनको चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। वार्डवासी जो मेरे वार्ड कटा है, मेरे जो साथ में जुड़े हैं उनसे पूछ लो ना, मैं तो बेचारे को क्या पता। जो मेरे साथ में पहला लगे तो 5 साल पहला, वो रो रहे हैं ये हमारा वार्ड कट गया, हमारा MC कट गया, वही हमारे को MC चाहिए था, पर अब क्या करें, सरकार ने जो कर दिया ठीक है, सभी कार्य। सड़कों का क्या हाल है जी? बहुत बुरा हाल है सड़कों का। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पीने का पानी इस तरह ही, जो बारिश आए तो हफ्ता गंदा पानी आता है। और नालियों, गंदे पानी की नालियों का हाल? नालियां भरिया भी हैं, देखो आपने कोई बुरा हाल है ये जगह। आपने इस संबंध में नगर कौंसिल के अधिकारियों या अपने MC को कभी बात करी जी? MC लंघ रही है जी, पता ही है सारा जी, कोई कहने की गाली नहीं की। तो जैसे कि कोरोना की महामारी फैली है, उस कोरोना की महामारी में सरकार द्वारा या नगर कौंसिल द्वारा आपको को किसी तरह की मदद पहुंचाई गई जी? किसी मदद देखो जो लोड़ अनुसार सी उन्होंने राशन पानी मिलेगा है, ठीक है। तो जो पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा MC के चुनाव कराने की संभावना जता रही है, उसमें जो आपके वार्ड के MC आए या काउंसलर आए वो कैसे होने चाहिए जी? देखो मेन तो काम मैम साहब का ही होता है, सफाई सफाई का ही होता है, ठीक है जी।
ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। अक्टूबर या नवंबर में अगर दोबारा चुनाव होते हैं एमसी के, तो जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? एमसी का बस यही काम है जी, देखो साफ सफाई का काम है, ये एमसी ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ एमसी ਨੂੰ। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।